Hello friend, yesterday we have seen rotary compressor and rotary compressor and dynamic compressor. Okay, rotary compressor is a part of continuous displacement compressor, and in dynamic compressor there are two types of compressor: axial flow compressor and centrifugal compressor. Okay, again in yesterday's lecture, in previous lecture we have seen reciprocating compressor also. Reciprocating compressor and rotary compressor are the part of positive displacement compressor. Positive displacement compressor means compression takes place by lowering the volume of air. Clear? And in dynamic compression, volume does not change to compress the air. Only mechanical energy is imparted on air, so that pressure of that air increases. Clear? So in positive displacement compressor, volume is decreases, that is why compression occurs. And in dynamic compressor, energy is supplied to the air or energy is imparted on air to raise its pressure and temperature. Okay, so in positive displacement compressor, we have two types of compressor: reciprocating and rotary compressor. What is the difference between reciprocating and rotary compressor here? Reciprocating compressor is used where air requirement is less but pressure required of air is large. Means we want to have a large pressurized air, then we can use reciprocating compressor. But discharge of reciprocating compressor is less. Less volume of air can be taken out from the reciprocating compressor. And in rotary compressor, pressure attained with rotary compressor is less, but discharge is large. Means we can have large volume of air whose temperature is somewhat lower than reciprocating temperature. मतलब अगर हमें ज्यादा प्रेशर की एयर चाहिए तो हम रेसिप्रोकेटिंग यूज करेंगे, अगर हमें कम प्रेशर की एयर चाहिए तो हम रोटरी कंप्रेसर यूज करेंगे. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कम वॉल्यूम बाहर आता है एयर का, मतलब उसका डिस्चार्ज कम रहता है, और रोटरी कंप्रेसर का डिस्चार्ज ज्यादा रहता है. मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कम डिस्चार्ज और ज्यादा प्रेशर मिलेगा, रोटरी कंप्रेसर में ज्यादा डिस्चार्ज और कम प्रेशर मिलेगा. So accordingly, what is our requirement? We can choose what to use, either reciprocating or rotary compressor. If our aim is to have pressurized air, then we will go for reciprocating compressor. If our aim is to have maximum amount of air, then we can with less pressure, then we can go for rotary compressor. Now today's lecture we have seen that we will see vacuum pump. There are number of types of vacuum pump. So first is rotary vacuum pump. Pump and compressor is somewhat same, or somewhat means it closely same. Means we can use same instrument as a pump or compressor. So what is here? Vacuum pump means vacuum is created. Okay. So to create vacuum, we have one combustion chamber where suction can take place. Okay. सो अगर हमें इसको कंप्रेसर बोल के यूज करना है तो हम कंप्रेसर बोल के भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें सिर्फ वैक्यूम पंप बोल के यूज करना है जो बाहर का अंदर खींचेगा, अंदर खींचने के लिए इसका प्रेशर कम होना जरूरी है, मतलब यहाँ पर वैक्यूम होना जरूरी है, इसको इसीलिए इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं. अगर इसे हम आइदर कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को, या वैक्यूम पंप भी यूज कर सकते हैं. दिस इज रोटरी वेन वैक्यूम पंप. यूज हैव इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व. What is the difference in this is always open. इनलेट वाल्व को कोई वॉल नहीं रहेगा, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व सील रहता है ऑयल लेवल से. मतलब जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तभी एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और एयर बाहर जाएगा. सो इट हैज ऑयल सील्ड एग्जॉस्ट वाल्व. क्लियर? सो इनलेट वाल्व इज continuously open. Now it is consist of one stator. Stator means a fixed portion, and inside it is have a rotor which is rotated. That is why it is rotor. But this rotor rotates eccentrically. This is not concentrical to this stator. ये eccentrically rotate होगा. Again, there is one slot, and in that slot vanes are placed. Okay, that vanes are attached with spring, that is to make able to air come out of this rotor. Clear? Understood? Inlet valve continues open,
exhaust wall is oil sealed, means when pressure inside generated more than outside air, then exhaust wall will open. Stator, which is fixed, rotor eccentrically rotate inside the stator. Eccentrically means दोनों का सेंटर अलग अलग है रोटेशन का, मतलब स्टेटर का सेंटर अलग है जो रोटेट नहीं होगा, और रोटर का सेंटर अलग है, इसेंट्रिक आपको मालूम है। उसके बीच में वेन रहता है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है, जो वेन को बाहर आने में मदद करता है। ओके, अब ये वेन स्टेटर को टच रहता है तो इसलिए सील रहता है, मतलब जैसे ये घूमेगा, देखो इधर भी आप देख सकते हो, जैसे घूमेगा, सपोज ये ऐसा ऊपर हो गया, वर्टिकल पोजीशन में आ गया, so what will happen, whatever air coming inside cannot go to the another portion of the this chamber, because this vein form is sealed, which does not allow this air to go this side. Okay, so जो भी एयर अंदर आएगी वो जैसे जैसे रोटर मूव होगा वैसे वैसे स्पेस कम ज्यादा होगा, यहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? This is nothing but the chamber inside pressure of air increases. Understood? ये दूसरे साइड में नहीं जा सकते। दूसरे साइड में कब जाएगा? When this what we say, when these veins got wear out, जब ये वेन के टिप wear out होंगे तभी ये उस साइड में जा सकेगा, लेकिन तब तक हम वेन बदल चुके होंगे। Okay, so this vein form sealed. So whatever air comes inside, because of this rotation of rotor and position of this vein, whatever amount of air coming inside, which is again compressed and sent to the outside. So vacuum is created here, another air will be inside. Understood? And when pressure is more than outside air, then this oil sealed exhaust valve get open, and whatever pressurized gas, it may liquid, it may air, which go out, and suction is created here, or vacuum is created here. So this is rotary vane vacuum pump. It is very similar to our rotary vane rotary compressor. Here, this is the description. This is inlet valve. This is line diagram. Inlet valve, exhaust valve, oil seal. This is rotor. This is stator. ये वेन है, ये वेन जैसे पोजीशन बदलेगी ये अंदर आएगा, जैसे रोटर की पोजीशन बदलेगी एयर अंदर आएगा, इंट्रा एयर कंप्रेस होगा, बाहर चले जाएगा, यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा, फिर से नई एयर आएगी, एयर या गैस जो भी हो, मतलब बाहर ये यहाँ पर हम वैक्यूम क्रिएट करें, दैट इज व्हाई इट इज वैक्यूम। ओके, नेक्स्ट इज डायफ्राम वैक्यूम पंप। This is the construction of diaphragm vacuum pump. One is diaphragm, this horizontal line is diaphragm. Okay, this 2 is head cover, this 3 is housing, 4 is connecting rod, 5 is suction chamber. Suction chamber means gap between diaphragm and head cover and diaphragm, इसके बीच का जो गैप है उसे सक्शन चेंबर के, एंड 6 वॉल्स इनलेट वाल्व एंड आउटलेट, यहाँ पर आपको आउटलेट की जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन कनेक्टिंग रॉड, बट दिस रोटरी मोशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड shaft is converting into reciprocating motion of this connecting rod. Okay, rotary motion of this shaft is converted into reciprocating motion of the shaft. So what happens when this diaphragm is connected to connecting rod, when this diaphragm comes down, so what will happen, ये जो कंबशन चेंबर इसकी साइज बढ़ेगा क्योंकि डायफ्राम नीचे गया है, तो हेड कवर के बीच में और डायफ्राम के बीच में जो गैप है वो बढ़ेगा, उससे क्या होगा, सेक्शन क्रिएट होगा, और ये जो यहाँ से एयर आ रही है ये अंदर आएगी, अंदर आने के बाद अब कनेक्टिंग रॉड जैसे ऊपर जाएगा, it takes diaphragm to the upper side. So what will happen, that whatever air or gas coming inside in between the head cover and diaphragm is compressed. Because of compression is pressure increases, and that is why this exhaust valve will get open and this compressed air go out. Okay, so again here vacuum is created when this goes out. Clear? So this is nothing but the diaphragm vacuum pump. It is very simple, and it consists of one diaphragm, head cover, housing. So the gap between head cover and diaphragm is a suction chamber, connecting rod.
connecting rod move this diaphragm up and down. Walls, so जैसे diaphragm नीचे आएगा, suction create होगा, diaphragm ऊपर जाएगा, pressure होगा, exhaust valve के थ्रू वो बाहर चला जाएगा. Clear? नेक्स्ट इज स्क्रोल वैक्यूम पंप. ये हमने कल देखा है. स्क्रोल रोटरी कंप्रेशन में यहाँ पर एक फिक्स स्क्रोल रहता है और एक मूवेबल रहता है. दोनों के बीच में गैप भरता है तो कंप्रेस होता है और वो जो भी एयर आए वो बाहर चले जाता है. तो ये हमने कल देखा है. सो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है राइट एंड शॉर्ट नोट में. राइट एंड नोट ऑन वैक्यूम पंप. आप कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो अगर 5 मार्क के लिए आता है तो. अगर स्पेसिफिक पूछा कि रोटरी वैक्यूम पंप एक्सप्लेन करो तो रोटरी वैक्यूम पंप एक्सप्लेन करो. अगर पूछा कि डायफ्राम वैक्यूम पंप एक्सप्लेन करो तो डायफ्राम वैक्यूम पंप एक्सप्लेन करो. अगर पूछा स्क्रोल तो स्क्रोल एक्सप्लेन करो. लेकिन अगर सिर्फ आया कि राइट नोट ऑन वैक्यूम पंप तो आप कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो 5 मार्क के लिए. अगर 8 मार्क के लिए आए तो दो कोई भी दो एक्सप्लेन, 2 या 3 भी एक्सप्लेन कर सकता छोटे छोटे डायग्राम में. 8 मार्क के लिए आया तो तीनों भी एक्सप्लेन करो. अगर 5 मार्क के लिए आया तो एक दो आपके पास जैसे टाइम हो आप एक्सप्लेन कर सकते. तीनों भी एक्सप्लेन किया तो बेटर है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज एयर मोटर. व्हाट इज फंक्शन ऑफ एयर मोटर? Whatever what is function of compressor is compressed here. So if we expand that air, energy generated. So to using that energy we can have we can use that compressed air many places. So the mechanism which utilize this compressed air or the machine which utilize this compressed air to perform some specific function in that machine is called वेन मोटर्स. जैसे कि अगर आपको मालूम है एयर पावर्ड कार में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर से की वजह से वो कार आगे जाती है. तो एयर कार इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एयर. सो इट इज आल्सो वी हैव सम स्पेसिफिक मोटर्स. वेन मोटर it is very similar to what we explained earlier, when vacuum pump or when compressor. This is the diagram जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी. ये वेन है, यहाँ से इनलेट में एयर आएगी. बिकॉज ऑफ दिस वेन वो यहाँ पर कंप्रेस होगी. कंप्रेस होने के बाद वो कंटिन्यूअसली यूज होती रहेंगे जहाँ पर उसको यूज करना है. फिर कहाँ पर यूज होता है वो बाद में देखेंगे. तो ये जो इसका जो फंक्शन है हमने कल एक्सप्लेन किया है. जो कंप्रेसर का काम ये दिस इज वन टाइप ऑफ कंप्रेसर, लेकिन उसमें अटैचमेंट रहता है जो कंप्रेस्ड एयर को आगे यूज करता है. क्लियर? दिस इज जस्ट मतलब एक कंप्रेस्ड एयर बाहर चली जाएगी. दिस वेन टाइप मोटर. पिस्टन टाइप, इसमें पिस्टन रहेगा. पिस्टन की मूवमेंट की वजह से कंप्रेस्ड होगा. ये एयर फ्लो है, ये इनलेट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट. यहाँ पे एयर अंदर आएगी और कंप्रेस होने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चली जाएगी. और बाहर जाने के बाद एक्सपांड होकर जो भी उसका काम है वो कर सकते हैं. These are the advantage of air motor. Variable speed, easy to use, low weight, inexpensive, without damaging इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. These are the application of air motor. Construction engineer में, hand tool, mining engineer, जो भी हम अभी जो हमारे काम का मैकेनिकल एप्लीकेशन लाइक हैमरिंग, रिवेटिंग एंड ड्रिलिंग, जो कंप्रेस्ड एयर यूज करके हम ड्रिल करते हैं या रिवेट करते हैं, तो दैट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एयर मोटर. वी आर यूजिंग कंप्रेस्ड एयर इन एयर मोटर. तो पिछले एग्जाम में एयर मोटर पे एक क्वेश्चन आया था. तो आप कौन सी भी एक एयर मोटर एक डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करो, उसके एडवांटेज लिखो और उसका एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हो 5 मार्क के लिए. These are the other indoor manufacturing plants, mobile, portable equipment at sea or land, non-electrical power satisfaction, emergency backup for electric motor, etc. outdoor. तो आपको क्या करना है, अगर आपको एयर मोटर पूछा, ये तो ज्यादा होगा, तो या तो वेन मोटर को एक्सप्लेन करो जिसका जो वर्किंग हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है. वैक्यूम पंप में भी वैसा है, कंप्रेसर में वैसा है, कोई भी तो वेन मोटर एक्सप्लेन कर दो डायग्राम निकाल के, या पिस्टन टाइप जो आपको इजी लगे निकालो. उसके बाद में उसका एडवांटेज लिखना है और एडवांटेज के बाद में एप्लीकेशन लिखना है. 5 मार्क के लिए सफिशिएंट है. डायग्राम निकालो, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करो, एडवांटेज लिखो और
एप्लीकेशन लिखो, दिस इज सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स, जनरली राइट एंड नोट ऑन में आते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश और चैप्टर एयर कंप्रेसर। इसके न्यूमेरिकल पे हमने लिए शायद उस दिन आवाज का प्रॉब्लम आता, तो जो दो न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन किए वो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप पे, क्लियर। सो थोड़ा आपको रिवाइज करता हूँ तो हमने क्या क्या देखा शुरुआत से। जो एक्सप्रेशन लिए वो उसका स्कैन कॉपी अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो भी आपको भेज दूंगा। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर की क्लासिफिकेशन हमने देखे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे वॉल्यूम कम होने की वजह से कंप्रेशन होता है वो, डायनामिक बोले तो जहाँ पर एनर्जी देने से कंप्रेशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग रोटरी, ये हमने पढ़ा। सिंगल एक्टिंग मतलब जब पिस्टन के एक ही साइड में कंप्रेशन होता है सिंगल एक्टिंग, जब पिस्टन के दोनों साइड में कंप्रेशन है तो डबल एक्टिंग, तो डायफ्राम। ये रोटरी, लोब, लिक्विड रिंग, स्क्रू, स्क्रोल वेल, ये वैक्यूम पंप में भी वही के वही है। डायनामिक, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सल, ये हमने कल देखा। इसके बाद इसके पहले हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो एग्जाम में आ सकते हैं वो एक्सप्रेशन देखे, और जिसके ऊपर न्यूमेरिकल डिपेंड है वो 3-4 एक्सप्रेशन देखे, वो आपको भेज दूंगा कल या आज, क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल, एक्सेल भी हमने कल देखा। इसके बाद में हमने वैक्यूम पंप देखा, रोटरी वेन वैक्यूम पंप, डायफ्राम वैक्यूम पंप, स्क्रोल वैक्यूम पंप, और भी ज्यादा है, लेकिन आप 5 मार्क के लिए आया, 6 मार्क के लिए आया तो आप 1 या 2 एक्सप्लेन करें तो सफिशिएंट है। 5 मार्क के लिए आया तो कोई भी एक एक्सप्लेन करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो, टाइम होगा तो 2 एक्सप्लेन करो, आपकी मर्जी। अगर एक में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो क्लियर। उसके बाद हमने एयर मोटर लिखा। एयर मोटर पिछले एग्जाम में आया था, राइट हैंड नोट ऑन एयर मोटर पे, तो आप कोई भी एक मोटर एक्सप्लेन करो, जैसे वेल मोटर है, उसका एडवांटेज एप्लीकेशन लिख दो, इट विल बी सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स। अगर 8 मार्क के लिए आते हैं तो 2 एक्सप्लेन करो, दिस बेटर, ये आपको भेज दूंगा मैं। ये भी दूसरे टाइप टर्बाइन मोटर, ये तो क्लियर। So in this way we have finished our last chapter, air compressor. Tomorrow we will start our new chapter, uh, condenser, which is also easy. इसके हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और थियरी भी देखेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछ